Jai Hind, dear students. Welcome to Sri Ram Public School online classes. This is your English class. Today I am going to start chapter 8 tenses. Let's start. We have already learned that verbs tell us about actions. हम पहले ही लर्न कर चुके हैं कि वर्ब्स हमें एक्शंस के बारे में बताते हैं. एग्जाम्पल: रन, राइट, रीड, प्ले, सिंग एंड सो ऑन. फर्स्ट सेंटेंस इज ही रन्स फास्ट. सेकेंड सेंटेंस इज वरुण इज राइटिंग ए लेटर. Third sentence is we sang a song yesterday. Tense is a form of verb which tells us whether something happening now, present, has already happened, past, or is going to happen, future. Tense verb का एक फॉर्म है जो हमें बताता है कि कोई भी चीज़ अब होने जा रहा है, मीन्स प्रेजेंट. कोई भी चीज़ पहले से ही हो चुका है, मीन्स पास्ट. या कोई भी चीज़ होने जा रहा है, मीन्स फ्यूचर. काइंड्स ऑफ टेंसेज. देयर आर 3 kinds of tenses. First is present tense. Present tense verbs tell us what is happening now or happens frequently. Present tense के verbs हमें बताते हैं कि अभी क्या होने जा रहा है या बार बार क्या होता है. Example: First is Mohit works in a bank. Second is Riddhi takes her dog for a walk. In the above sentences, the words works and takes show that the action happens every day. ऊपर के sentences में works और takes दोनों words हमें बताते हैं कि action every day होता है. Second is past tense. Past tense verbs tell us what has already happened. Past tense के verbs हमें बताते हैं कि पहले से क्या हो चुका है. This could be any time of the past. यह past का कोई भी समय हो सकता है. Example: First is Mohit worked in a bank. Second is Riddhi took her dog for a walk. The words worked and took tell us that the action happened in the past. Worked and took ये दोनों words हमें बताते हैं कि action past में हो चुका है. Third is future tense. Future tense verbs refer to actions that will happen in the future. Future tense के verbs बताते हैं कि action future में होगा. Example: First is Mohit will work in a bank. Second is Riddhi will take her dog for a walk. The words will work and will take tell us that the action will happen in the future. Will work and will take ये दोनों words हमें बताते हैं कि action future में होगा. In order to show actions in the past, we add ed to most of the verbs. पास्ट में एक्शंस को दिखाने के लिए हम
मोस्टली वर्ब्स में ईडी ऐड करते हैं। एग्जाम्पल, प्ले प्लस ईडी प्लेड, वर्क प्लस ईडी वर्कड। Some verbs change their spellings completely in the past form. Past form में कुछ verbs अपने spellings को पूरी तरह से चेंज कर लेते हैं। Look at the given table. Base form, past form. Begin का began, blow का ब्लू, ब्रेक का ब्रोक, ब्रिंग का ब्रॉट, बाय का बॉट, फॉल का फेल, ग्रो का ग्रीव, हियर का हियर्ड, नो का न्यू, लीव का लेफ्ट, लूज का लॉस्ट, स्लीप का स्लेप्ट। Some verbs do not change their form at all even when they express actions that happened in the past. कुछ verbs अपने फॉर्म को बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं जब वे पास्ट में होने वाले एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल, कास्ट, कट, फिट, हिट, knit, let, put, read, etc. To remember, there is no future form of verb. वर्ब का कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं होता है। We indicate future time by using will/shall with verbs. हम verbs के साथ will या shall का यूज करके फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करते हैं। एक्सरसाइज A. Fill in the blanks with the correct form of verbs given in brackets. ब्रैकेट्स में दिए गए वर्ब को करेक्ट फॉर्म के साथ फिल कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस इज याशिता डैश टू स्कूल एवरी डे और ब्रैकेट में वर्ब है गो, तो आप यहाँ क्या फिल करेंगे? याशिता आपका क्या है? यह सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इसलिए आप वर्ब में ईएस का यूज करके राइट करेंगे। याशिता गोज टू स्कूल एवरी डे। इसी तरह और सेंटेंसेस को आप कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज बी. चेंज द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू देयर पास्ट फॉर्म्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ब्रैकेट्स में दिए गए वर्ब्स को पास्ट फॉर्म में चेंज कीजिए और नीचे दिए गए सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, द प्यून डैश द गेट और ब्रैकेट में क्लोज, तो क्लोज का पास्ट फॉर्म क्या होगा? क्लोज्ड। तो आप यहाँ क्या फिल करेंगे? क्लोज्ड। द प्यून क्लोज्ड द गेट। एक्सरसाइज सी. Encircle the verb in each of the following sentences. नीचे दिए गए सेंटेंसेज में वर्ब को सर्कल करना है। ऑल्सो स्टेट वेदर दे शो प्रेजेंट टाइम PR और पास्ट टाइम P। और आपको यह भी बताना है कि वे प्रेजेंट टाइम दिखाते हैं तो PR या पास्ट टाइम दिखाते हैं तो P राइट करना है। जैसे फर्स्ट इज माय फादर
वॉक्स वेरी फास्ट। अब इसमें वर्ब क्या है? वॉक्स। और वॉक्स को आप सर्कल करेंगे। इसके बाद यह प्रेजेंट टाइम शो करता है या पास्ट टाइम? तो यह प्रेजेंट टाइम शो करता है और इसके सामने आपको PR राइट करना है। इसी तरह और सेंटेंसेज आप कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज D, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी यूजिंग द ING फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। नीचे दिए गए स्टोरी को वर्ब्स के फॉर्म में ING यूज करते हुए कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज E, राइट द पास्ट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेज। नीचे दिए गए वर्ब्स के पास्ट फॉर्म को राइट करना है और उन्हें अपने सेंटेंसेज में राइट करना है। जैसे फर्स्ट इज कुक, कुक का पास्ट फॉर्म कुक्ड, और आपको इससे एक सेंटेंस बनाना है। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, शी कुक्ड फूड। ओके, इसी तरह आप वर्ब्स के पास्ट फॉर्म को राइट करोगे और उनसे सेंटेंसेस को बनाओगे। एक्सरसाइज F, रीराइट द फॉलोइंग पैसेज चेंजिंग द वर्ब्स इन इटैलिक्स इनटू द पास्ट टेंस। नीचे दिए गए पैसेज में जो वर्ब्स इटैलिक्स में राइट किए गए हैं उन्हें आपको पास्ट टेंस में चेंज करके फिर से राइट करना है। एक्सरसाइज G, राइट 5 sentences stating what you do in your school। 5 sentences को राइट करना है, यह बताते हुए कि आप स्कूल में क्या करते हो। थिंक एंड डिसाइड केयरफुली विच टेंस शुड बी यूज्ड। सोचिए और केयरफुली डिसाइड कीजिए कि कौन से टेंस यहाँ पर यूज होने चाहिए। एक्सरसाइज H, राइट 5 sentences stating how you spent your previous day। आपको 5 sentences राइट करने हैं, यह बताते हुए कि आपने अपने प्रीवियस डे को कैसे बिताया। थिंक एंड केयरफुली डिसाइड विच टेंस शुड बी यूज्ड। सोचिए और केयरफुली डिसाइड कीजिए कि कौन से टेंस यहाँ पर यूज होने चाहिए। एक्सरसाइज I, राइट 5 sentences stating how you will prepare for your parents' wedding anniversary next year। आपको यहाँ 5 sentences राइट करने हैं, यह बताते हुए कि आप अपने पेरेंट्स के वेडिंग एनिवर्सरी को नेक्स्ट ईयर किस तरह प्रिपेयर करेंगे। थिंक एंड डिसाइड केयरफुली विच टेंस शुड बी यूज्ड। सोचिए और केयरफुली डिसाइड कीजिए कौन से टेंस यहाँ पर यूज होने चाहिए। स्टूडेंट्स, now we will revise some important topics related to chapter. There are 3 kinds of tenses: present tense, past tense and future tense. Tenses के 3 kinds होते हैं। First is present tense, second is past tense and third is future tense. The present tense is used for the things happening now. Present tense उन चीज़ों के लिए यूज किए जाते हैं जो अभी हो रहे हैं। The past tense is used for the things happened in past.
पास्ट टेंस उन चीज़ों के लिए यूज किए जाते हैं जो पास्ट में हो चुके हैं। द फ्यूचर टेंस इज यूज्ड फॉर द एक्शंस दैट विल टेक प्लेस इन द टाइम टू कम। फ्यूचर टेंस एक्शन के लिए यूज किए जाते हैं कि वह एक्शन कब होगा। स्टूडेंट्स, if you have any doubt, then we will discuss in doubt solving session. Thank you. Have a good day.